Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. So in last class, we were studying about potential and the potential difference, and then we studied about electric circuit and the circuit diagram and the electric circuit components. And now in this lecture, we are going to study about Ohm's law. And along with that, I'm going to provide you the notes of this chapter, electricity, so that it will be helpful for you to maintain the notes for your exams. तो ओम्स लॉ सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है एंड व्हाई डू वी स्टडी इट। देखिए, ओम्स लॉ हम स्टडी करते हैं व्हेन वी स्टडी द इलेक्ट्रिसिटी इन फिजिक्स। उसमें जब हम करंट और वोल्टेज के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं कि हाउ द वोल्टेज एंड द करंट इज कनेक्टेड विद ईच अदर, एंड एक और चीज वहां पे निकल के आती है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है। तो हाउ दीज थ्री पैरामीटर्स आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, द वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, that is all given by ohms. The we can say uh, ohm's law was given by a German physicist George Simon Ohm in 1827। तो उन्होंने इस लॉ को दिया था, and it gives a relationship between current I flowing in a metallic wire and potential difference V across the terminals। तो जो हम कंडक्टर वायर यूज करते हैं, ठीक है, उसके टू एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें और जो करंट उसमें पास होती है, द करंट विच फ्लोज थ्रू इट, उसके बीच में एक रिलेशनशिप दिया था। एंड इफ वी राइट इन प्रॉपर प्रॉपर वे, देन वी कैन राइट इट लाइक फ्रॉम देयर फ्रॉम फ्रॉम देयर वी कैन राइट, वन सेकेंड। Able to write something. Okay, I hope now I will be right. Okay, so we can state the Ohm's law as that it states that the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference, applied across its ends, provided the physical conditions like temperature remains constant or unchanged। तो he said that the potential difference, ठीक है, so the potential difference, the relationship between potential difference and current is such that the current flowing, जो current इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जो पास हो रहा है, that current is directly proportional to the potential difference which is created between the two terminals of the conductor। और उसके साथ में एक कंडीशन भी है, वन कंडीशन इज ऑल्सो देयर, दैट फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर वायर शुड नॉट बी चेंजिंग। वो कांस्टेंट रहना चाहिए, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या कांस्टेंट रहना चाहिए, दैट इज टेम्परेचर। और उसका भी रीजन है, यहाँ पे क्यों बोला गया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। द रीजन इज, अगर टेम्परेचर चेंज होता है, हम देखेंगे आगे कि कैसे टेम्परेचर जब चेंज होता है, व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस, so you are going to see that the resistance of the wire also changes. So that is why we need to clarify here that the temperature of the surrounding, or the that that we can say the conductor should not change, otherwise the resistance of that wire will be going to change. Anyhow, the law says that, it says that it says that the potential difference, like if V is the potential difference applied across the ends of a conductor through which current I flows, जिसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमने V अप्लाई किया है, ठीक है, अगर V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और करंट I उसमें फ्लो करता है, देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, व्हेन वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वी गेट ए कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज नेम्ड एज आर। ठीक है, वो कांस्टेंट निकल के आता है आर। और इन मोर जनरल वे वी स्टडी ओम्स लॉ एज वी इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, जहां पे आर क्या होता है, आर इज द, हियर द आर इज द, here R is the resistance of the circuit. ठीक है, R is the resistance of the circuit and R is the resistance of the it is called resistance of the circuit. And one more thing, how, on what factors it depends, that we are going to see. So first of all, ओम्स लो को क्लियर कर लेते हैं। ओम्स लो क्या है कि V प्रोपोर्शनल टू I अपने पास आया था, एंड देन वी गॉट V इक्वल्स टू आई आर, वेर R इज constant of proportionality। proportionality it is the constant of proportionality, and it is the constant of proportionality, and it remains constant at constant temperature। ठीक है, अगर उसके कोई भी अदर फिजिकल कंडीशंस को चेंज ना किया जाए, अगर वायर का मान लो लेंथ नहीं चेंज किया हमने, एरिया नहीं चेंज किया और टेम्परेचर नहीं चेंज किया, देन देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर विल रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही रहेगा। और we can see here that here V equals to IR, it is a equation of simple straight line। ठीक है, अपने पास जो इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का, Y equals to mx, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, वेयर m इज द स्लोप। ठीक है, तो इस केस की जब मैं बात करता हूँ V equals to IR की, तो यहाँ पे V is, if we take V on y axis, the potential the potential difference on y axis and the current I on x axis, then the slope of the straight line, इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे, उसका जो जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, उसका जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस आर। ठीक है, वो रेजिस्टेंस आर के इक्विवेलेंट होगा। और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं, जहाँ पे आपको दो ग्राफ दे दिए जाते हैं वी एंड आई के बीच में, और उसमें पूछा जाता है कि कौन से कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है। सो दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी आर आल्सो गोइंग टू सी दैट व्हाट दे आर एक्चुअली सेइंग। And if we more precisely see that what is resistance here, so resistance is the property of a conductor to resist the flow of charge through it। यानी कि resistance एक तरीके से it is a property of that conductor wire that says that it resists the current flow, or we can say the charge flow through the that conductor, and the value of R depends on the size and nature of material। of course it depends on the nature of material also, कि भाई कौन से मटेरियल का हमने वायर यूज किया है, इफ इट इज अ नाइक्रोम वायर और एनी कॉन्स्टेनन वायर। ठीक है, तो उन सब के रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं बिकॉज द मटेरियल इज डिफरेंट। बट हाँ, एक चीज क्लियर है कि एक चीज इनमें कांस्टेंट रहेगी, अगर हम सेम मटेरियल का वायर लेते हैं तो उसकी एक चीज कांस्टेंट रहेगी, एंड दैट वी आर गोइंग टू सी दैट उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, जो आर का वैल्यू है, ठीक है, जो आर का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो उसके साइज पे डिपेंड करता है, उसका दूसरी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, एंड तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, कंडक्टर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अप टू 10th लेवल यू आर नॉट गोइंग टू सी द एग्जैक्ट इक्वेशन, बट अगर जैसे ही आप 12th में जाएंगे तो आप एक इक्वेशन देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर में। इफ यू वांट टू नो दैट आर विल बी given as R equals to R naught 1 plus अल्फा इंटू टी, 1 प्लस अल्फा इंटू टी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आर नोट क्या है, आर नोट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर एट
वी कैन से रेफरेंस लेवल टेम्परेचर, जहां से अपने स्टार्ट करते हैं, रेफरेंस लेवल टेम्परेचर, एंड अल्फा इज द अल्फा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड टी इज द टेम्परेचर। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी राइज कर जाएगा। सो दैट इज व्हाई इन ohm's law it is specified that the physical condition should also be remaining same, plus the temperature of the wire should not increase or decrease. It should be same throughout the process, then only the the equation which we get v equals to ir is valid। तो ये जो v equals to ir हमारे पास ohm's law का इक्वेशन आया है, वो हमें तभी मिलता है। एंड एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे ही जैसे क्वेश्चन आता है ओम्स लॉ का, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसमें v इक्वल्स टू आई आर लिख के आ जाते हैं। तो दैट इज नॉट एग्जैक्टली द आंसर, क्योंकि v इक्वल्स टू आई आर इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, or the we can say it is the mathematical equation that represents the ohm's law. It is not the statement of the ohm's law. For statement you need to write this। स्टेटमेंट के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे है, it states that the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends, provided the physical conditions like temperature remains constant or unchanged। You need to write that। Okay, moving further। अब जो ये रिलेशन अपने पास आया है v इक्वल्स टू आई आर, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इस इक्वेशन को हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको वोल्टेज दे दिया जाए और रेजिस्टेंस दे दिया जाए और आपसे करंट पूछे, तो हाउ विल यू फाइंड आउट द करंट इन द सर्किट? सो इट विल बी आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ठीक। अगर आपसे रेजिस्टेंस पूछ लिया जाए तो इट विल बी वी अपॉन आई। ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन, that is how you can define the voltage, the current and resistance in terms of the other two variables। Okay, now as we can see that the current is inversely proportional to the resistance। how is it possible? क्योंकि we have v equals to IR, तो करंट जो है that is inversely proportional to the resistance। what does it mean? That means if the resistance of the circuit is higher, the lower current will be flowing through it, and if the resistance of the circuit is lower, then the higher current will be flowing through the circuit। and if for example if we are doubling the resistance, यानी कि रेजिस्टेंस का वैल्यू जैसे हम डबल करते हैं, ठीक है, आर को अगर मैं यहाँ से 2R कर देता हूँ, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट? तो नई जो करंट अपने पास आएगी आई डैश। ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू ट्वाइस कर दिया तो इट विल बी ऑब्वियसली हाफ ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। एंड अगर हम रेजिस्टेंस को हाफ करते हैं तो ऑन द अदर साइड द करंट विल बी गेट डबल्ड। एंड टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन अ सर्किट, वेरिएबल रेजिस्टेंस इज यूज्ड। तो जो जो हम यहाँ पे इस ये वाले आर की बात कर रहे हैं, जो रेजिस्टेंस आर है, ठीक, उसका वैल्यू तो फिक्स्ड रहता है। बट अगर हमें वोल्टेज को ना चेंज करते हुए हमें सर्किट में करंट को चेंज करना है, देन व्हाट वी आर गोइंग टू यूज? वी आर गोइंग टू यूज डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वो हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। ठीक। सो वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ component used to regulate current without changing the voltage source। The device used to change the resistance is rheostat। rheostat का मैंने जैसे डायग्राम बनवाया था, सिंबॉलिक डायग्राम, इट इज लाइक दिस, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। दिस इज ऑल्सो, देर आर टू सिंबल्स ऑफ rheostat और द वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि व्हाट इज द वीआई ग्राफ। वीआई ग्राफ फॉर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वीआई ग्राफ क्या आता है? तो हमें इक्वेशन पता है। व्हाट इज द इक्वेशन? द इक्वेशन इज v इक्वल्स टू आर आई।
V equals to Ri, where the R is कांस्टेंट। अगर इस तरीके का इक्वेशन अपने पास है, v equals to Ri, where R is the constant, then for sure we are going to get a straight line as it is drawn on the right side of the page। ठीक है। तो x एक्सिस पे हमने क्या लिया है, करंट लिया है, एंड इस दिस इक्वेशन इज जस्ट सिमिलर टू द y इक्वल्स टू mx। तो यहाँ पे y एक्सिस पे हमने वोल्टेज को लिया है, तो वी आर डिफाइनिंग वोल्टेज ऑन द y एक्सिस एंड द करंट I ऑन द x एक्सिस पे हमने करंट को डिफाइन किया है और y एक्सिस पे हमने वोल्टेज को डिफाइन किया है। तो जो ग्राफ इसके बीच का आता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन ग्राफ, एंड इसका जो स्लोप आएगा, आई होप यू ऑल नो व्हाट इज स्लोप। ठीक है। ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो ये इसने एंगल बनाया है, दैट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और इसको हम डिनोट करते हैं tan थीटा से। tan थीटा इक्वल्स टू स्लोप। ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास स्लोप मिलेगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई, क्योंकि हमें क्या करना होता है, फॉर डिटरमाइनिंग द स्लोप्स वी नीड टू टेक 2 पॉइंट्स फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। मान लो एक पॉइंट हमने यहां से ले लिया ए, एक पॉइंट हमने ले लिया यहां से पॉइंट बी, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वी कैन टेक एज, अगर इसको मैच करते हैं इनके साथ, ठीक, और एक कोऑर्डिनेट यहां से हमने लिया 2 पॉइंट्स, तो इसका मान लो यहाँ पे जो करंट का वैल्यू है दैट इज I2, और यहाँ पे करंट का वैल्यू है I1, और यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू है V1, और यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू है V2। सो द कोऑर्डिनेट्स विल बी I2 कोमा V2, और इस पॉइंट पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा अपने पास, I1 कोमा V1। ठीक है। I1 कोमा V1। अब हमें जो डेल्टा V और डेल्टा I हमें निकालना है यहाँ पे, तो जो स्लोप हमको मिलेगा दैट इज V2 माइनस V1, यानी कि वाई एक्सिस के जो 2 पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें माइनस करने हैं, अपॉन x2 माइनस x1, I2 माइनस I1। ये जो स्लोप है, दैट इज दैट इज सिंपली द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर वायर। ये किसके इक्विवेलेंट मिलेगी हमें, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है। और वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमारे पास क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, मान लो कि अपने दो ग्राफ दे दी जाए, ठीक है, उनके उनके बीच का हमें रेजिस्टेंस पूछा जाए कि किसका ज्यादा है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करके देख लेते हैं। लेट अस अज्यूम 2 ग्राफ्स गिवन। ठीक है। सो लेट अस ड्रॉ 2 ग्राफ्स। On y axis I am taking voltage, and on x axis I am taking current। ठीक। अब मैं यहाँ पे 2 ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। वन इज फॉर कंडक्टर ए, एंड द अनदर वन इज, जो पिंक ग्राफ है दैट इज फॉर कंडक्टर ए, एंड द ग्रीन ग्राफ इज फॉर कंडक्टर बी। सो अकॉर्डिंग टू यू, which one which conductor is having the more resistance, आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन से वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, कौन से का कम है, जस्ट लुकिंग एट द ग्राफ। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप डायरेक्टली देख लेंगे कि कौन सा ग्राफ है जो ग्रेटर एंगल बना रहा है। ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ ये अपना एक्स एक्सिस है, और ये अपना वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है इतना, प्लस जो जो वायर ए है, ठीक है, कंडक्टर ए है, दैट इज मेकिंग द बिगर एंगल। सो यू कैन सी हियर दैट
theta A is greater than theta B, and similarly, as we know that tan theta A will also be greater than tan theta B, जो कि क्या होती है, इनकी स्लोप होती है। tan थीटा का वैल्यू आपको जैसे पता होगा कि इसका वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक जाता है, जैसे ही हम एंगल को 0 डिग्री से 90 डिग्री जब करते हैं तो, ठीक है। जैसे ही tan थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाता है, तो tan थीटा का वैल्यू 0 से इंफिनिटी जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रेटर द एंगल ग्रेटर द स्लोप, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कंडक्टर ए है, ठीक है, दैट इज हैविंग द ग्रेटर स्लोप एज कंपेयर टू कंडक्टर बी। सो सिंपली वी कैन से दैट the resistance of conductor A, RA is greater than RP. RA is greater than RP. So that is how you can solve the questions on the competency based questions, we can say. And this time the board is decided to ask the more number of competency based questions. So you need to prepare well for that. अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं अपन इसमें। हम एक्सिस पे जो हमने पैरामीटर्स लिए हैं, जो वेरिएबल्स लिए हैं, करंट एंड वोल्टेज, अगर हम इनको फ्लिप कर दें तो, मान लो कि हमने करंट को वाई एक्सिस पे ले लिया और वोल्टेज को एक्सिस पे ले लिया, तब भी क्या इसकी स्लोप रेजिस्टेंस को डिनोट करेगी? नहीं, तब उस केस में नहीं करेगी। तब उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि इसका स्लोप किसको डिनोट कर रहा है, क्योंकि जैसे हमने देखा यहाँ पे, स्लोप सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर सिंपलर वे में आपको जानना है तो वाई अपॉन एक्स कर सकते हो, एक पॉइंट से अगर करें तो। वैसे एक पॉइंट से निकलता नहीं, बट फॉर सिंपलर वे आई एम जस्ट सेइंग इट। तो आपके पास क्या आएगा, वी अपॉन आई, एंड एज पर द ओम्स लॉ वी कैन से दैट इट इज रेजिस्टेंस आर। अब मैं एक दूसरा ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज व्हेन वी फ्लिप द वेरिएबल्स ऑन द एक्सिस। देखो, अब मैं एक ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ। Let us say on y axis I am writing current I। करंट I को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ y एक्सिस पे, और पोटेंशियल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ किस पे, x एक्सिस पे। अब मैं जैसे ही ग्राफ बनाता हूँ, तो यू विल सी दैट, वन सेकेंड, जैसे मैं दो ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे, लेट अस से ये कंडक्टर ए के लिए, कंडक्टर बी के लिए। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो स्लोप क्या है यहाँ पे, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी। और वो क्या करेगा, फॉर स्मॉलर व्हेन द डेल्टा वी इज वेरी स्मॉल, तो उस केस में क्या होगा, ये किसको डिनोट करेगा, इट विल डिनोट सिंपली 1/r, दैट मीन्स द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो इस केस में अपना जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का क्राइटेरिया है, दैट विल बी जस्ट फ्लिप, क्योंकि इस केस में जितना बड़ा एंगल होगा, ठीक है, आप देखो अगेन द स्लोप, अगर हम बात करते हैं टेन थीटा ए इज ग्रेटर देन टेन थीटा बी, बट स्टिल मैं इसको थीटा बी लिख रहा हूँ आउटर एंगल को, और ये थीटा ए लिख रहा हूँ, सॉरी थीटा बी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो टेन थीटा ए इज ग्रेटर देन ऑफ कोर्स टेन थीटा बी, बट हमें पता होना चाहिए कि जो टेन थीटा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1/r ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कर रहा है 1/r बी को। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट आर बी इज ग्रेटर देन आर ए। तो आपको ध्यान रखना है कि y और x एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, करंट लिखा हुआ है या फिर वोल्टेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब वी आई ग्राफ हम बोलते हैं, तो
बेसिकली बाय डिफॉल्ट हम यही सोचते हैं कि वाई एक्सिस पे हमने वोल्टेज लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने करंट लिया है, तो उसकी वजह से जो स्लोप निकल के आता है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑफ द पीआई ग्राफ, दैट रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर। बट जैसे ही हमने इसको वेरिएबल्स को फ्लिप किया, वाई एक्सिस पे करंट को लिया और एक्स एक्सिस पे हमने वोल्टेज को लिया, तो इसका जो स्लोप है दैट विल रिप्रेजेंट 1/r, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो इस केस में जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो कंडक्टर ए है, इसका स्लोप ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका स्लोप कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ओके, so resistance is the property of conductor to resist the flow of charge or current through it। ठीक है, करंट को या फिर चार्ज फ्लो को रेसिस्ट करना ही उस मटेरियल का रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस अगर ओम्स लॉ से निकालना है तो इट विल बी आर इक्वल्स टू वी अपॉन I, where V is the applied potential difference and I is the current। ठीक है, and the resistance of a conductor is the ratio of potential difference across its ends to the strength of current flowing through it। तो इस तरीके से अगर हम इसका ऐसा यूनिट निकालें इन टर्म्स ऑफ द यूनिट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, तो क्या निकल के आएगा, इट विल बी वोल्ट पर एम्पियर। ऐसा भी अगर लिख के आ जाता है तो इट इज ऑल्सो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, उसी का ऐसा यूनिट माना जाएगा। और दूसरा जो हम यूज करते हैं, द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। दिस इज द सिंबल यूज्ड फॉर द ऐसा यूनिट ऑफ ओम, एंड यू कैन राइट ओम दिस वे ऑल्सो। ठीक है, आप ऐसे भी ओम लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। ओके, नाउ इफ यू वांट टू राइट the definition of 1 ohm of resistance of a conductor, then it is defined as, it is said to be 1 ohm if a current of 1 ampere, the current of 1 ampere, the current of 1 ampere flows through it when a potential difference of 1 volt is applied across its ends। ठीक है, तो अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे उस कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी 1 ohm, and it can be written as the potential as 1 volt and the current as 1 ampere, so it will be 1 volt ampere inverse। So 1 ohm of resistance can be written as 1 volt ampere inverse। तो इस तरीके भी आप लिख सकते हैं इसको। अब हम बात करेंगे कि कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कंडक्टर के कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसको डिक्रीज कर सकते हैं। सो अबाउट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। So first factor on which the resistance of the conductor depend is the length of the conductor। उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो भी कंडक्टर वायर होता है, ठीक है, सो द मोस्टली कंडक्टर वायर्स एज वी हैव सीन इन आवर हाउस ऑल्सो, जो घर में कंडक्टर वायर है दैट इज ऑफ सिलिंड्रिकल से। ठीक है, तो उस सिलिंड्रिकल वायर का, ठीक है, सिलिंड्रिकल वायर, मान लो हमारे पास ये वायर है, तो उस वायर का कुछ लेंथ होगा, लेट अस से द लेंथ इज एल, एंड देन उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा। ठीक है, if the cross sectional area is A, then the resistance of the conductor will depend directly proportional with the length। यानी कि
जो रेजिस्टेंस है, दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर लेंथ को मैं बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, अगर लेंथ को कंडक्टर छोटे लेंथ का मैं कंडक्टर लेता हूं तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा एज कंपेयर टू उसी सेम मटेरियल का अ, बड़ी लेंथ का अगर मैं कंडक्टर लेता हूं तो। और इन सिंपल वर्ड्स हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर हमारे पास सेम मटेरियल का दो वायर है और उनका लेंथ डिफरेंट है, तो R1/R2 कैन बी रिटन एज L1/L2 अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। लिख सकते हैं आप, अगर सेम मटेरियल के दो वायर हैं जिनका जिनका लेंथ डिफरेंट है, L1 एंड L2 उसका लेंथ है, तो वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इफ द रेजिस्टेंस इज गिवन। अगर रेजिस्टेंस नहीं दिया है, अगर रेजिस्टेंस दिया है तो हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर लेंथ दिया है तो हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। सो द the resistance of the conductor is inversely proportional to the cross sectional area of the conductor। तो यानी जो कंडक्टर वायर है, ठीक है, ये कंडक्टर वायर मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। तो कंडक्टर वायर है, इसका हम क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको बोलते हैं, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। उस पे डिपेंड करता है कैसे, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। दैट मीन्स अगर इफ द एरिया ऑफ द कंडक्टर इज लेस, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ दैट कंडक्टर विल बी मोर। ठीक है, अगर मान लो अपने पास एक पतला वायर है और एक मोटा वायर है, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होना चाहिए? देखिए, अगर पतला वायर है, दैट मीन्स द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन विल बी स्मॉलर। अगर मोटा वायर है, थिकनेस उसकी ज्यादा है, थिक वायर है, एज कंपेयर टू थिक एंड थिन वायर, किसका ज्यादा होना चाहिए रेजिस्टेंस, अगर वो सेम मटेरियल का रेजिस्टेंस बना हुआ है? देखिए, थिन है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा और उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो थिन वायर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू थिक वायर्स। अगर मैं कॉपर के वायर को एक मान लीजिए 10 mm का वायर लेता हूँ, 10 mm का वायर लेता हूँ और दूसरा 5 mm का वायर लेता हूँ, तो 5 mm कॉपर वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 10 mm कॉपर वायर। और यहाँ पे आप जब मान लीजिए मार्केट में जब जाते हैं, तो आप वहां पे जाके आपसे इलेक्ट्रिशियन पूछेगा कि आपको कौन सा वायर चाहिए। उनके पास वैरायटी होती है। का मतलब यहाँ पे डायमीटर से होता है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे जो मैं साइज वर्ड यूज करता हूँ, साइज ऑफ द कंडक्टर, तो वो उसके डायमीटर की बात करता है। अगर मैं 5 mm बोल रहा हूँ तो 5 mm उसका डायमीटर है। ठीक है, इफ आई एम सेइंग 10 mm, 10 mm मतलब 10 मिलीमीटर, तो उसका जो डायमीटर है वो 10 mm का है। ये सिंपली मीनिंग होता है उसका। तो अगर वहां पे आप इलेक्ट्रिशियन के पास जाएंगे, हमें घर में पावर सप्लाई के लिए वायरिंग यूज करनी है और आप हमें कॉपर वायर दे दीजिए, तो द फर्स्ट क्वेश्चन ही विल आस्क यू दैट कि कौन से साइज का वायर आपको देना है, 5 mm का देना है, 10 mm का देना है, या फिर उससे बड़ा देना है। और उन हम 5 mm 10 mm को अलग अलग वायर्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें अपने घर में या फिर कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिसिटी वायर्स की जरूरत पड़ती है, तो वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज पड़ती है। मान लो हमें सिंपली घर के सर्किट्स बनाने हैं तो हम पतले वाले वायर यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हमें मान लो जो आपने देखा होगा, जो मोटर्स रहती है, इलेक्ट्रिक मोटर्स, उनके वायर मोटे मोटे होते हैं। ठीक है, थिकनेस उनका ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें करंट ज्यादा जरूरत पड़ती है हमको। ठीक है, मोटर को चलाने के लिए हमें ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम कम रेजिस्टेंस के वायर वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, ओके। सो व्हेन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड, द रेजिस्टेंस गेट्स हार्ड। ये तो जस्ट सिंपल बात है कि अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नेचर नेचर में है, तो जितना फैक्टर से ये
मल्टीप्लाई होता है तो उतने फैक्टर से ये वाला डिवाइड होता है। ठीक है, तो इन सिंपलर वे वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर resistance of two wires of the same material of cross sectional area A1 and A2. Sorry, here it will be A2 and A1. So like this way you can write the equation. R1 upon R2 will be equal to A2 upon A1. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट किस पे डिपेंड करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ द कंडक्टर कैसे डिपेंड करता है वो डायरेक्टली आपको शो नहीं होगा। फॉर दैट वी रिक्वायर टू मर्ज अबाउट टू इक्वेशंस। अपने पास दो इक्वेशन आ गई है। फर्स्ट वन वाज R proportional to L एंड द सेकंड वन वाज R proportional to 1/A। तो इन दोनों को जब हम मर्ज करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन के आता है R is proportional to L/A। ठीक है, L/A आता है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो अपने पास एक कांस्टेंट आता है दैट इज रो, एंड दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे रो क्या है। तो रो, दिस रो इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। और इसका कनेक्शन अगर हम जो रिलेशनशिप पूछें कंडक्टर के केस में, तो कंडक्टर से ये कैसे रिलेट करता है। इट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर। रेसिस्टिविटी, इट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर। एंड इसको कई बार हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। एंड द एसआई यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी, ये जो रो है उसका एसआई यूनिट है ओम इनटू मीटर्स। द एसआई यूनिट ऑफ द रेसिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर वायर इज ओम इनटू मीटर। और वो आप डेराइव भी कर सकते हैं। कैसे डेराइव करेंगे। आपको पता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, रेसिस्टिविटी का आपको फाइंड आउट करना है। एल का एल का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो ये क्या बनेगा, मीटर है डिवाइड उसमें डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर है तो इट विल बी 1 अपॉन मीटर ओनली। अब रो का हमें यूनिट निकालना है तो रो इस साइड रहेगा और ये ओम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट इज सिंपली ओम इनटू मीटर। और एक और इसका यूनिट होता है, आप अगर देखेंगे तो साइमन भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, so the SI unit it is defined as the resistance of a conductor of unit length having unit area of cross section। ये तो हम जस्ट सिंपल उसकी जो इक्वेशन अपने पास है ये उसी से हम डेफिनेशंस बना सकते हैं कि भाई वो यूनिट। देखो यूनिट कोई क्वांटिटी की डेफिनेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है अगर हमें फॉर्मूला पता हो तो। फॉर्मूला से हम बना सकते हैं। द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम इनटू मीटर। एंड मेन थिंग इज कि रेजिस्टिविटी होती क्या है और वो किस पे डिपेंड करती है। सो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। उसके नेचर, जिस मटेरियल से जो रेजिस्टेंस वायर बना हुआ है, जो कंडक्टर वायर बना हुआ है उसके नेचर पे डिपेंड करती है। मान लो अगर अगर कोई वायर कॉपर का है तो रेजिस्टिविटी भी कॉपर की ही यूज होगी उसमें। ठीक है, अगर मान लो कि कोई वायर कॉन्स्टेनन का है या फिर कोई नाइक्रोम वायर है अपने पास, तो उन सब की रेसिस्टिविटी डिफरेंट होती है। और एक चीज आप देखेंगे कि रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है कि उस वायर का साइज कितना है, उसका लेंथ कितना है, या फिर आप बोलेंगे कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। रेसिस्टिविटी उस पर नहीं डिपेंड करती है। रेसिस्टिविटी
एक तरीके से उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उस वायर का, उस पर्टिकुलर मटेरियल का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो नहीं चेंज होगा। ठीक है। तो अगर आप 2 मीटर का वायर लेते हैं या 2 मिलीमीटर का वायर लेते हैं, 2 सेंटीमीटर का भी वायर लेते हैं सेम मटेरियल का, तो रेसिस्टिविटी उसका उतना ही रहेगा। हाँ, रेजिस्टेंस जरूर चेंज हो जाएगा अगर उसका लेंथ चेंज हुआ, उसका एरिया चेंज हुआ। ठीक है। सो दैट इज व्हाट रेसिस्टिविटी। एंड ऑल्सो ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, टेम्परेचर पे जरूर डिपेंड करेगी ये, क्योंकि इसका भी सेम इक्वेशन बन के आता है। रो, जो मैंने उसके बारे में बताया था, 1 + अल्फा टी। ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर एज इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो रेसिस्टिविटी भी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है। It is a characteristic property of the material. The metals and alloys have very low resistivity in the range of 10 to the power minus 8 ohm into meter to 10 to the power minus 6 ohm into meter। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, तो वो क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। आपको न्यूमेरिक डेटा दिया जाएगा कि आप, एक वायर है, अननोन वायर है, मान लीजिए अननोन वायर है, और उसका रेसिस्टिविटी आपसे फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा। और बाद में पूछेंगे कि ये वायर कौन सा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ लाइक इट इज अ मेटल, एलॉय और सम अदर इंसुलेटर वायर, कौन सा वायर है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो फॉर दैट यू नीड टू हैव द आइडिया अबाउट द रेंज ऑफ द रेसिस्टिविटी फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। तो मेटल्स एंड एलॉयज के लिए जो रेंज होती है, that is very low. We can say the value, the order of the resistivity is very low as compared to the other wires. The range is 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 to the power minus 6 ओम इंटू मीटर। अगर इस रेंज का कोई वायर है, इस रेंज का अगर आपके पास रेसिस्टिविटी आता, मान लो आपके पास आ गया 2 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर रेसिस्टिविटी आ गया, तो आप बोल सकते हैं कि ये मेटेलिक वायर है, मेटल का वायर बना हुआ है। एंड वी कैन से दैट दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई भी वायर का रेसिस्टिविटी, ध्यान रखिए, अगर कोई भी वायर का रेसिस्टिविटी कम है, दैट मीन्स इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द नेक्स्ट थिंग इज इंसुलेटर्स लाइक रबर एंड ग्लास हैव रेसिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, आप देखिए कितना बड़ा है इसका वैल्यू, इस the value of the order of the resistivity of the insulators is 10 to the power 12 ohm into meter to 10 to the power 17 ohm into meter। both resistance and resistivity vary with temperature। वो तो ठीक है, चलो। तो लेकिन जब हम वैल्यू की बात करते हैं इनकी, तो एज कंपेयर टू मेटल एंड एलॉय, मेटल का तो देखो बेचारे का 10 to the power minus 8 ओम इंटू मीटर से 10 to the power minus 6 ओम इंटू, कितना बहुत कम, जीरो। इट इज नियरली जीरो, वी कैन से दैट। ठीक है, जीरो आएगा आपका, कितना वैल्यू आएगा अगर 10 to the power minus 6 की बात करते हैं, तो 0.5 टाइम्स जीरो देन वन, इतना उसका वैल्यू है रेजिस्टिविटी का। और वहीं पर सेम लेंथ का अगर आप इंसुलेटर का कोई वायर लेते हैं, तो उसका वैल्यू आएगा रेसिस्टिविटी का 10 to the power 12 ओम इंटू मीटर, इतना हो सकता है, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है, अप टू 10 to the power 17 ओम इंटू मीटर। वन के आगे 17 जीरो लगेंगे, आप गिन लीजिए। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड insulator। दैट इज वाई the insulators are said to be the, we can say they don't allow the current to flow। ठीक है, वो वहां से इंसुलेटर से करंट फ्लो नहीं हो सकता। द रीजन इज रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी इज वेरी हाई। ओके। The resistivity of an alloy is generally higher than that of its uh, constituent metals। आप एक चीज ध्यान रखिए, जब हम एलॉय बनाते हैं, ठीक है, जब एलॉयज बनाए जाते हैं, तो उनका जो रेसिस्टिविटी होता है,
उनका जो रेसिस्टिविटी होता है दैट इज स्लाइटली हायर देन द मेटल्स। हायर देन, क्योंकि जो एलॉयज होते हैं वो दो मेटल्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं। तो जो एलॉय जो बना है उन मेटल्स को मिक्स करने से, तो उस एलॉय का जो रेसिस्टिविटी होगा वो जो पहले इंडिविजुअल मेटल्स थे उनसे हायर होगा लिटिल बिट। ठीक है, उनसे उनसे हायर होगा। ठीक है, अगर क्योंकि जो मेटल्स है उनका रेसिस्टिविटी तो बहुत कम है, बट जो एलॉयज है उनका थोड़ा सा ज्यादा होता है उनसे। And alloy do not oxidize readily at high temperature, so they are commonly used in electrical heating devices like electric iron, toasters, etc. Tungsten is used almost exclusively for filaments of electric bulbs, whereas copper and aluminium are generally used for electrical transmission lines. तो आप ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है एलॉयज से रिलेटेड, कि व्हाई डू वी यूज एलॉयज इन द इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, क्यों यूज करते हैं। तो आपको यही लिखना पड़ेगा उसमें आंसर, दैट द रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज generally higher than that of its constituent metals. Alloy do not oxidize readily at higher temperature, वो हाई टेम्परेचर पे जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। एंड they are commonly used in the that is why they are commonly used in the electrical heating devices। और मोस्ट कॉमन चीज जो हम देखते हैं, जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स के फिलामेंट होते हैं वो टंगस्टन से बने होते हैं। टंगस्टन से फिलामेंट बनाए जाते हैं। ठीक है। Now a question is given here that how much current does, and the question is given as how much current does an electric heater draw from a 220-volt line if the resistance of the heater is 50 ohm। ठीक है, तो सिंपली वी कैन अप्लाई हियर द ohms law। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन एज 220 volts and the resistance of the heater wire is given as 50 ohm, and now we will apply the ohms law, which says that V is equivalent to IR, and the current I will be equivalent to V upon R। और V का वैल्यू अपने पास है 220 volts and R का वैल्यू कितना है 50। तो you are going to see that what is the value of what is the value of electric current, what is the value of electric current, it is 4 point, it is it is 4, it is 4 point, the current here is 4.4 ampere। So that is how you can कैलकुलेट द करंट। अगर यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस ना देके यहाँ पे करंट दे दिया होता तो हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दीज आर द सिंपलर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ओम्स लॉ। नाउ लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन हियर, that is the potential difference between the terminals of an electric heater is 100 volt when it draws a current of 5 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 160 volt? Let us solve this question। जो हमारे पास पहले पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है दैट इज 100 वोल्ट, और उससे करंट कितना मिल रहा है हमको, द करंट इज 5 एम्पियर। ठीक, तो उस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर इक्वेशन से, R विल बी V अपॉन I, एंड वी विल गेट V कितना है अपने पास 100 वोल्ट है, और I कितना 5, तो 20 ओम उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। 20 ओम इज द रेजिस्टेंस। अब ये बात कर रहे हैं कि द करंट विल how the current will change if the potential is increased to 160 volt।
तो अपने पास अब रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया है एंड रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर विल नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि उसका टेम्परेचर चेंज होता है। तो बाय डिफॉल्ट वी आर अज्यूमिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ दैट वायर इज सेम, सो द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल आल्सो बी गोइंग टू सेम। तो दिस टाइम V will be equivalent to IR, and the I will be V upon R. तो दिस टाइम द वोल्टेज इज 160 वोल्ट और हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है 20। तो सिंपली वी विल गेट 8 एम्पियर एज अ करंट, 8 एम्पियर एज अ करंट। So that is how you can find out the values. Let us solve one another question. That resistance of a metal wire of length 2 meter, the resistance of a metal wire of length 2 meter, उसका length 2 meter दिया गया है, at temperature 25 degree centigrade, if the diameter of the wire is 0.6 mm, ठीक है 0.6 mm दिया हुआ है, तो we know that 1 mm equals to 10 to the power minus 3 meter. So 0.6 mm will be equivalent to 6 into 10 to the power minus 4 meters. Then what will be the resistivity of metal at that temperature? ठीक है, उस टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर हमने चेंज नहीं किया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, क्योंकि हमें पता है कि अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो रेसिस्टिविटी वैल्यू भी चेंज हो जाएगा और वी विल बी नॉट एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू एग्जैक्टली। एंड द रेजिस्टेंस इज गिवन एज 30 ओम, 30 ओम उसका रेजिस्टेंस है। सो एज वी नो दैट the equation of resistance is R equals to rho L by A। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमें यहाँ पे लेंथ दिया गया है, उसका रेजिस्टेंस दिया गया है, बट एरिया नहीं दिया गया। तो एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे डायमीटर तो दिया हुआ है, ठीक है। अगर डायमीटर दिया है हमारे पास तो हम उसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। तो इट विल बी 6 to the power minus 4 मीटर अपॉन 2, and we will get 3 into 10 to the power minus 4 meters as a radius of the that conductor wire। अगर हम हमें रेडियस पता चल गया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट वायर विल बी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली वी कैन पुट दिस इन द इक्वेशन एंड विल गेट द रेसिस्टिविटी। चलिए देखते हैं कि रेसिस्टिविटी अब क्या आएगा। सो आर इक्वल्स टू, वी गेट द इक्वेशन एज R equals to rho L by A, and now rho we can take rho as a separate quantity, और यहाँ से हम इसको रीअरेंज करेंगे तो विल गेट rho equals to R into A upon L, और A का इक्वेशन एज वी राइट पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा इक्वेशन, द इक्वेशन विल बी R का वैल्यू हम रख सकते हैं दैट इज 30 ओम, पाई का वैल्यू होता है 3.14, और R का वैल्यू हमारे पास आ गया 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और लेंथ अपने पास कितना है, इट इज, आई होप इट इज 2 मीटर। हाँ, द लेंथ इज 2 मीटर। अब फर्दर वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन एज 2 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो विल गेट 15। सो इट विल बी 15 इंटू 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर इज 9, एंड 10 टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर इज 10 टू द पावर माइनस 8, एंड द यूनिट इज ओम इंटू मीटर। अब इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी एज रो इक्वल्स टू 4.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम इंटू मीटर, 6 ओम इंटू मीटर। सो दैट इज हाउ यू कैन सोल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेसिस्टिविटी ऑल्सो। और आप देखिए कि हम जब मेटल की बात कर रहे थे तो उसका रेंज जो हमने डिसाइड किया था 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर से 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर, तो इसका रेसिस्टिविटी भी सेम क्या है, उसी ऑर्डर का आया है 10 टू पावर माइनस 6 ओम इंटू मीटर। सो बाय जस्ट चेकिंग द ऑर्डर ऑफ द रेसिस्टिविटी, by just simply checking the order of the resistivity we can also that check that it is metal or not। One another question we are going to solve is a wire of given material having length L and area of cross section A
has a resistance of 8 ohm, what would be the resistance of the same material having length 2L and area of cross section as a by 2? तो हमारे पास एक सिंपल सा इक्वेशन आया था, अगर आपको याद हो तो, that R is directly proportional to L by A. तो इसने क्या बोला है कि वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। तो जब इसका एरिया और लेंथ इतना होता है L एंड A, तो उसका रेजिस्टेंस आता है 8 ओम। ठीक है, लेट अस से दैट R1 इज ऑफ 8 ओम, जो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस आया है। What would be the resistance of the same material having length 2L and area of cross section A by 2? यहाँ पे एक चीज लिखी गई है, बहुत सावधानी से देखिए आप, केयरफुल। सेम मटेरियल मतलब इसको लिखने का क्या पर्पस है? सेम मटेरियल का मतलब है उसका रेसिस्टिविटी भी सेम होगा। भाई अगर मटेरियल सेम है तो उसका रेसिस्टिविटी वैल्यू भी सेम होगा। तो फ्रॉम दिस वी कैन गेट इक्वेशन बिटवीन टू resistances of two different length and area of the same material. So it will be R2 will be R2 R2 will be L2 upon A2 रो रो L2 upon A2 upon रो L1 upon A1। क्योंकि हमें पता है जो रेजिस्टेंस है उसका इक्वेशन क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। R इक्वल्स टू रो L बाई ए होता है। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो रो हमने सेम क्यों लिया है? बिकॉज इट इज ऑफ द सेम मटेरियल, और जो रेसिस्टिविटी होता है वो सेम होता है। सो दिस रो विल बी कैंसल्ड आउट एंड द इक्वेशन विल बी रीअरेंज्ड एज R2 अपॉन R1 इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट टू L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस वे। अब आप आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, उनका वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इनका जो इनका जो वैल्यू आएगा, R2 हमें फाइंड आउट करना है एंड R1 इज 8 ओम। ठीक है, इक्विवेलेंट टू L2 इज 2L एंड L1 इज L यानी कि इनिशियल लेंथ, इनटू A1 कितना है, A1 इज A एंड एरिया कितना हो गया है सेकेंड टाइम पे, A2 इज A by 2। So finally we will get L1 and L will be cancelled out, A and A will be cancelled out, and you will get 2 into 2, that is 4, and you will get the resistance R2 as R8, ये इससे 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 into 4 ohm, that is 32 ohm। So simply the resistance of the new wire is 32 ohm। ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। Then other questions also can be solved this way। Now I am giving you one question for practice, that अगर कोई वायर है मान लीजिए, ठीक है, let us say the question is such as, if a wire is cut perpendicularly in two pieces of lengths in ratio 2:3, 2:3 में उसको कट कर दिया हमने, देन
then what are the new resistances if the resistance of old wire is R? अगर पहला रेजिस्टेंस R ओम का है और उसको हमने परपेंडिकुलरली कट कर दिया है कुछ इस तरीके से, मैं इसको आपको डायग्राम से भी बता देता हूँ सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस R है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, परपेंडिकुलरली इसको काट देता हूँ। परपेंडिकुलरली का मतलब क्या होता है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल वायर है, परपेंडिकुलरली मैंने इसको काट दिया है, ठीक। तो अब मैं इसको काट कैसे रहा हूं, द लेंथ ऑफ द टू पीसेस शुड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है। तो मैंने यहां से इसको काट दिया है, एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ इज 2:3। अगर मैं ये L1 लेता हूं इसका लेंथ, और इसका लेंथ L2 लेता हूं, ये वाले पीस का यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, सो L1:L2 इज 2:3, and the complete length of the original wire is L, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि what are the new resistances of these two pieces of the wires। आपके पास L1 एंड L2 दो पीस बन गए हैं, उनका आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R1 है, L1 का, और L1 वाले का, L2 वाले का R2 है। तो आपको R1 एंड R2 फाइंड आउट करना है in terms of R. So that is the question for your homework. I hope you got the all the concepts cleared, and thank you for watching. If you like this video, then please like, comment, and subscribe. Thank you so much.